Hello everyone. So this is our first topic that we will discuss today, and that is evaporation. Hi, myself Jyoti Chandra. I am an assistant professor in the Department of Pharmaceutics, Metro College of Health Sciences and Research, Greater Noida. So coming to the introduction part, evaporation means simply vaporization from the surface of a liquid. ठीक है, तो evaporation को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बेसिकली वाष्पीकरण बोलते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, भाप बनने की प्रक्रिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड. ठीक है, कोई भी लिक्विड के ऊपर जो कोई भी लिक्विड है वो भाप बन रहा है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एवेपोरेशन. ठीक है, तो वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन. जब कोई भी लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, ठीक है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एवेपोरेशन. दस नो बॉइलिंग अकर and the rate of vaporization depend on the diffusion of vapor through the boundary above the liquid. Thus, a more practical definition of evaporation is the removal of liquid from a solution by boiling the solution in suitable vessel and withdrawing the vapor, leaving the concentrated residue. ठीक है, अगर हम अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बात करें एवेपोरेशन की, तो एवेपोरेशन क्या होता है कि लिक्विड का रिमूवल होता है. ठीक है, जहाँ पे हम अपने लिक्विड को या सॉल्यूशन को बॉईल कर रहे हैं एक सूटेबल वेसल में. ठीक है, और वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और उन्हीं वेपर्स को मैं हटा रही हूँ बार बार, और वेपर्स को हटाने के बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, जो नीचे जो रेसिड्यू रह रहा है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन नेचर. ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज evaporation. So for this heat will be necessary to provide the latent heat of vaporization. ठीक है, तो latent heat of vaporization क्या है? It is also known as enthalpy of vaporization. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं कितनी हीट प्रोवाइड कर रही हूँ to vaporize the amount of liquid to convert into a gas. ठीक है, मतलब कि हीट की रिक्वायरमेंट to convert 1 mole of liquid into the vapor or the gaseous form under a standard atmospheric pressure or standard atmospheric condition. ठीक है, तो this heat is known as latent heat of vaporization, and in general the rate of evaporation is controlled by the rate of heat transfer. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि rate of evaporation जो होता है, हमारा जो evaporation phenomena है, is totally controlled by the rate of heat transfer. मतलब कि जितना heat transfer ज़्यादा होगा उतना ही हमारा evaporation का जो process है वो ज़्यादा होगा. So coming to the next slide, that is factors affecting the evaporation. So there are several factors which affect evaporation. So the first is your temperature. ठीक है, the rate of evaporation is directly proportional to the temperature. जैसे अभी हमने पहले बात की कि evaporation process जो होता है कंट्रोल होता है बाय द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है, तो हीट ट्रांसफर कहाँ पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही evaporation का जो प्रोसेस है वो फास्टर होगा. सेकेंड इज योर सरफेस एरिया. ठीक है, तो सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ evaporation. ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड जो है उस जहाँ से वो evaporate हो रहा है, जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा evaporation होगा, maximum evaporation will be there. So it is directly proportional to the rate of evaporation. Third is your agitation. Agitation is also necessary for evaporation as it enhances the rate of evaporation. ठीक है, agitation मतलब stirring. ठीक है, तो मैं अपने लिक्विड को यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए एजिटेशन प्रोवाइड करूँगी, और जितना जल्दी हीटिंग मिलेगी उतनी ही जल्दी लिक्विड जो है वो evaporate होगा. So it is also a necessary requirement for the evaporation. Fourth is your atmospheric aqueous vapor pressure. The rate of evaporation is inversely proportional to the atmospheric aqueous vapor pressure. ठीक है, तो इस पॉइंट से मेरा मतलब है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो दैट मॉइस्चर ऑल्सो एग्जिस्ट सम वेपर प्रेशर. ठीक है, तो इसका इनवर्स रिलेशन होता है
विद द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो जितना ज़्यादा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अगर उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, और अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं गर्मी वाले दिन की बात करूं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल 40 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत ही कड़ी धूप निकली है, तो उस दिन का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा। उस दिन एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी फास्टर। बट अगर मैं किसी नमी वाले दिन की बात करूं, किसी ह्यूमिड कंडीशन की बात करूं, तो उस दिन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का ज़्यादा होगा, तो उस दिन रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी स्लोअर। ठीक है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर एवेपोरेशन। तो दीज 2 पॉइंट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। तो जो हमारा रेट ऑफ एवेपोरेशन है, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर एवेपोरेशन। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज type of product required. The selection of the method and the apparatus to be used for evaporation depends upon the type of product required. ठीक है। तो product requirement से मेरा मतलब है कि मुझे product की consistency कैसी चाहिए, मुझे अपना product कैसा चाहिए, क्या मुझे जो product है वो completely dried form में या powdered form में चाहिए या थोड़ा semi solid form में चाहिए। ठीक है। Depending upon what is the requirement of my product, what is the consistency I required। ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं अपना evaporation method और apparatus चूज करूंगी। एंड द लास्ट वन इज योर इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक फैक्टर विल बी मोर अफेक्टिंग फैक्टर द रेट ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है। कि तो यहाँ पे मैं सभी चीज़ें देखूंगी कि जो भी मैं apparatus यूज़ कर रही हूँ वो कितना महंगा है, उसका क्या प्राइस है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है। तो ठीक है, दीज विल ऑल्सो डिपेंड द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द evaporators, so first we are discussing our evaporating pans। ठीक है। तो in this क्या होता है, on a manufacturing scale liquid extract containing waters are evaporated in open pans called evaporating pans। ठीक है। तो जो liquid extract होते हैं जिनमें water होता है, water containing liquid extract, वो evaporate किए जाते हैं in a evaporating pans। ठीक है। evaporating pans की अगर मैं बात करूं, अगर आपको अब if you can imagine, मतलब इट्स लाइक देसी कढ़ाई। ठीक है। बहुत बड़ा सा पैन है और उसमें हम लिक्विड को इवेपोरेट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें कंस्ट्रक्शन कैसी होती है इसकी, हेमिस्फेरिकल शैलो मेड अप ऑफ कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और इनामिल्ड आयरन। ठीक है। तो ये चार मटेरियल का, चार में से किसी भी एक मटेरियल की बनी हो सकता है हमारा जो इवेपोरेटिंग पैन है, और हेमिस्फेरिकल शेप होती है। तो हेमिस्फेरिकल शेप के फायदे क्या है, इट प्रोवाइड द बेस्ट सरफेस वॉल्यूम रेशो फॉर द हीटिंग। ठीक है। उसके बाद इसमें एक स्टीम जैकेट होती है, स्टीम जैकेट होती है। ठीक है। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज योर हेमिस्फेरिकल पैन। ठीक है। और उसके बाद एक आउटर लेयर है। ठीक है। दिस आउटर लेयर इज योर स्टीम जैकेट। ठीक है। और इस स्टीम जैकेट में आपका एक इनलेट लगा हुआ है। ठीक है। और राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एयर वेंट लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद कंडेंसेट आउटलेट लिखा हुआ है नीचे, और एक आउटलेट है जो आपके पैन से कनेक्ट हो रहा है, दैट इज योर प्रोडक्ट आउटलेट। तो इसकी वर्किंग क्या कह रही है कि जो हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं अपने पैन के अंदर। उसके बाद स्टीम इज इंट्रोड्यूस थ्रू द स्टीम इनलेट। तो हम जो स्टीम है उसको स्टीम इनलेट से यहाँ से फिल कराते हैं। ठीक है। तो उस स्टीम के कारण जो मेरा पैन है वो हीट अप होगा। ठीक है। दिस स्टीम विल प्रोवाइड हीट टू द पैन। ठीक है। और क्या होगा, हमारा जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होना चालू होगा, तो वो ऊपर से इवेपोरेट होके वेपर्स में कन्वर्ट होके निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद द कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड इज कलेक्टेड थ्रू द आउटलेट। ठीक है। तो जो नीचे का जो हमारा रेसिड्यू रह जाएगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट होगा, उसको हम यहाँ से प्रोडक्ट आउटलेट से कलेक्ट कर लेंगे, एंड जो स्टीम जो होगी वो कंडेंसेट होकर यहाँ से कंडेंसेट आउटलेट से निकल जाएगी। ठीक है। दिस इज योर वर्किंग of your evaporating pans. So coming to the advantages, they are simple, easy and cheap to construct। ठीक है। बहुत ही easy simple construction होती है,
इजी टू यूज़ होते हैं, क्लीन होते हैं, उस ठीक है, हम उनको आसानी से साफ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और स्टरिंग ऑफ द इवेपोरेटिंग लिक्विड कैन बी इजीली डन। ठीक है। सेकेंड इज योर डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या कह रहा है? द होल ऑफ द लिक्विड इज हीटेड ऑल द टाइम विच में लीड टू डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट। तो क्या है कि यहाँ से हम स्टीम दे रहे हैं, स्टीम क्या दे रही है? हीट प्रोवाइड कर रही है। तो क्या होगा, जो आपका जो लिक्विड है, ठीक है, उसमें पूरे के टाइम जितनी भी देर तक ये प्रोसेस चलेगा, हीट विल बी प्रोवाइडेड। तो उसकी वजह से चांसेस हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, तो उसका हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करें जो हीट के कारण डिकम्पोज हो रहे हैं। उसके बाद ऑन द इवेपोरेटिंग सरफेस फोम इज रैपिडली फॉर्म्ड विच डिक्रीजेस इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब ये जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड जहाँ से इवेपोरेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फोम क्रिएट होता रहेगा। फोम मतलब झाग, झाग क्रिएट होता रहेगा। तो उससे क्या होगा, it will cause resistance to the rate of your process of evaporation। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो हमें बार बार फोम हटाना पड़ेगा। उसके बाद दिस पैन कैन ओनली बी यूज फॉर इवेपोरेटिंग एक्वस और थर्मोस्टेबल लिक्विड एक्सट्रैक्ट। तो एक्वस में वाटर कंटेनिंग लिक्विड एक्सट्रैक्ट के लिए ही मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। दूसरा थर्मोस्टेबल, जैसे हमने बोला था कि क्योंकि हीट यहाँ पे पूरे टाइम दी जाती है, तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं। तो हम ऐसे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि थर्मोस्टेबल हैं। वी कैन नॉट यूज देम फॉर थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इवेपोरेटिंग स्टिल। ठीक है, तो इवेपोरेटिंग स्टिल की कंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ अ जैकेटेड इवेपोरेटिंग पैन्स। ठीक है, तो जैकेटेड नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक इवेपोरेटिंग हेमिस्फेरिकल शेप में एक पैन अटैच्ड है और उसके बाद इसके ऊपर एक जैकेट लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज आउटर कवरिंग। ठीक है, विद अ सिलेंड्रिकल कवर, और ऊपर की साइड यहाँ पे सिलेंडर जो है वो अटैच है। ठीक है, नीचे हेमिस्फेरिकल पैन, ऊपर सिलेंडर है। ठीक है, और नीचे जो हेमिस्फेरिकल पैन है इसके बाहर एक जैकेट लगा हुआ है। ठीक है, और दिस होल असेंबली इज कनेक्टेड टू अ योर कंडेंसर। दिस पार्ट इज योर कंडेंसर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी असेंबली क्या कहलाती है? इवेपोरेटिंग स्टिल। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करती है? ठीक है, जो भी लिक्विड मुझे इवेपोरेट करना है, ठीक है, जिसमें भी इवेपोरेशन करवाना है, आई विल फिल दैट लिक्विड इन दिस। ठीक है, और यहाँ पे ये जैकेट लगा हुआ है, तो इस जैकेट में स्टीम इनलेट है। इस स्टीम इनलेट से मैं स्टीम इसके अंदर फिल करूंगी। तो स्टीम के कारण क्या होगा? हीट यहाँ पे प्रोवाइड होगी और उस हीट के कारण जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होना चालू होगा। लेकिन क्या होगा, इस बार जो वेपर है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे। इस बार जो ये वेपर्स हैं इस पैनल के थ्रू कंडेंसर के अंदर आएंगे। ठीक है, कंडेंसर के अंदर आएंगे और कंडेंसर से कंडेंस होने के बाद हम यहाँ से जो लिक्विड है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, जहाँ से पूरा का पूरा लिक्विड इवेपोरेट हो गया है, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द प्रोडक्ट आउटलेट। ठीक है, so this the liquid is fed into the still, the cover is clamped, steam is introduced into the jacket, and the liquid is evaporated and condensed in the condenser and collected. The product is collected from the product outlet. So what are the advantages? It is easy to clean and maintain. ठीक है, ये भी हम इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा कि हम अलाउ द इक्विपमेंट टू बी यूज्ड फॉर सॉल्वेंट अदर देन वाटर। ठीक है, जो एवेपोरेटिंग पैन था उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो एक्वस, जो वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस थे, उन्हीं को हम एवेपोरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बट इन केस ऑफ एवेपोरेटिंग स्टिल वी कैन यूज दोज प्रोडक्ट ऑल्सो विच कंटेन अदर सॉल्वेंट अदर देन वाटर। ठीक है, उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है कि हीटिंग सरफेस जो है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हीटिंग सरफेस लिमिटेड होता है, बट जो इवेपोरेटिंग पैन्स जो होते हैं उनमें हीटिंग सरफेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आई होप you understand all those concepts. Thank you for watching this video.